पानी दिखने में पारदर्शी, लेकिन क्या हर पारदर्शी पानी सुरक्षित भी होता है? कई बार जो पानी हमें साफ दिखाई देता है, उसके भीतर अदृश्य खतरे छिपे होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। यही कारण है कि शहरी पाइप जल आपूर्ति प्रणाली में सिर्फ वितरण पर्याप्त नहीं है, सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। और इस सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है प्रभावी क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी में नियंत्रित मात्रा में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन एक ऐसा तत्व जो पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह पानी को रोगाणु मुक्त बनाता है और उसे पीने योग्य बनाता है। लेकिन यह प्रक्रिया जितनी सरल सुनाई देती है, उतनी है नहीं। यदि क्लोरीन की मात्रा कम हो तो जीवाणु पूरी तरह नष्ट नहीं होते। यदि अधिक हो तो पानी का स्वाद, गंध और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आवश्यक है संतुलन, नियमित परीक्षण, तकनीकी दक्षता और निरंतर निगरानी। शहरी बिहार तेजी से विकसित हो रहा है, नई बस्तियां बस रही हैं, पाइपलाइन नेटवर्क विस्तारित हो रहा है। पुरानी पाइपलाइन से रिसाव, अपर्याप्त प्रेशर, कहीं यदि पाइप फट गया है, सही से पानी नहीं जा रहा है, उसको हम जाके देख रेख करते हैं। यदि टूट गया है तो उसका शिकायत हम करते हैं। उसके बाद आकर के मिस्त्री लोग उसको ठीक करते हैं। गुणवत्ता बदल जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमारी प्रणाली पर्याप्त रूप से सक्षम है? क्या हम हर बिंदु पर गुणवत्ता सुनिश्चित कर पा रहे हैं? राज्य स्तरीय एडवोकेसी वर्कशॉप में इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। तकनीकी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया, नियमित अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण अनिवार्य हो, क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाइए, फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए जाए ताकि डेटा के आधार पर निर्णय लिए जा सके। यह सिर्फ चर्चा नहीं थी, यह एक कार्य योजना की रूपरेखा थी। प्रभावी क्लोरिनेशन जनस्वास्थ्य की सुरक्षा कवच है। यह अदृश्य सुरक्षा है जो हर घर, हर परिवार को सुरक्षित रखती है। I literally have no clue what has been discussed in the anticipating, like whatever I learned through this one. I just have some submissions so that you can contemplate on that. You said now you are focusing on small towns, like urban areas, and if you have counted them as 264, can we categorize them in different groups, not as 264 as a bunch, categorize them as small towns with in terms of certain population, LULC, that means land use pattern, how they are built, and also geographical positioning. I just give you an example. In the morning I was discussing about a village or a small town coming up in between two embankments. You just imagine they are different from other townships, but they are between two embankments. Either one of them breach, this town is submerged. So when we are, what I am trying to suggest is, if there are small towns coming up in future or going for an expansion, then can we see the new areas which are going to be added has the climate vulnerability or the hazard vulnerability. For example, Patna, I'm just taking an example. Patna is going to add one more extension to this one. Do we have the climate vulnerability of the area which is going to be added to this? That way, when we are expanding it, it is not to stop the development. It is to plug the vulnerability. I mean, like minimize that hazard vulnerability. Can we take that approach? That's one of the things. And as you rightly pointed out, all our data shall be on the geospatial platform, GIS platform. Whatever data, if for example now I'm searching in dark for the even major towns, the drainage map of them. We want to develop the urban flood scenarios, digital twins. The basic need drainage map is not there. If it is already there, how updated it is. If it is not there, we shall update it. If it is not there, we have to draw them.
Maybe from the topo sheet we may have to take it, but we need to develop it. And once that is there, all your building plans or roads or any infrastructure which is going to come shall be laid on that. We can create the layers. And why not even the parks? Where to place them? Which are, for example, in the, I just give you an example of Patna city itself. We have done a study. We have taken Eco Park area in between Danapur in the extreme, Eco Park in the other extreme. In between also we have taken. You know the temperature difference during the heat wave season, it is almost 2.5 degrees, both in daytime and night time. Eco Park is lesser, Danapur is 2.5 degrees at the same time. Danapur is 2.5 degrees higher than Eco Park area. Why? Land use pattern is different, the vegetation type is different, the density of the buildings is more. Not only that, the material used for those buildings are very different than this area. So all this shall be captured in the small towns from now on itself, so that we don't face this kind of situation. That can be brought into it. So, and when I said the parks, when you are going for the new extension, yes, the policy says you should have a park. But where you shall keep that park to get the maximum benefit of it? We tried this in Bangalore. It's working very well, because your canopy height and the area which is covering will have an impact on a larger extent, provided you put it in the right place. Otherwise, it's going to be just there a vegetation, an area having, but it has no impact on any of this climate action. So that shall be taken care of. And map, however smaller water bodies they are, map them. We are mapping them. We shall provide that layer, GIS layer, once you are there. If we are part of that scheme, we will be happy to do that. That's what I wanted to add. And lastly, before I go into it, now BMSK, Rajiv already knows about it. BMSK has developed a multi-hazard early warning system, with which on a dashboard anywhere, we are developing a dashboard. That dashboard shall be flashed anywhere, whether it in your desktop, laptop or any digital screens. You will be able to see which area is going for which hazard currently, or with a certain lead time. For example, heat wave. Which blocks are going for heat wave condition? There is a guideline to declare a heat wave. That is, it should be 40 degrees and above, and 4.5 degrees above the normal. Is that what human looks for? No. He will start responding to it much before. The moment it crosses 36, 37 degrees, the discomfort level starts shooting up. So we will be cautioning from then. Not necessarily we wait, now declare heat wave is there. That is for us to consume. But to caution the people, we will show the orange light. Be prepared. From this 36, 37, 38 degrees. And the moment you touch 40 degree, you are already aware and you are prepared. You are acting upon it. It is just heat wave one case. Like that, whether it is cold wave or fog or heavy rainfall, all that will be in one single dashboard. If your district name is there or on the map it is shown, then you know which block is going to have it. If your block name is there, then you will also know which panchayat is there. So ULBs, if it is there, you can take action with enough lead time. For example, heat wave, at least you have 3 days lead time. For cold wave also. For lightning, you will have about 90 minutes lead time. So like that, different lead times will be there. It will be available for all the community to use. Thank you very much. Thank you so much. I think
I also joined sir a little bit late, so I also don't have, but I think I was 1 hour late. But good to see you, so that the government is there finally. No, I'm not government. Absolutely not. No, so I think some of the reflections जो आपने वहाँ पे मतलब काफ़ी एग्जॉस्टिव आपने लिस्टिंग किया, तो सबसे पहले तो उसके लिए बताइए। साइंस की बातें पूरे दिन हुई, तो थोड़े आर्ट की बात हम करेंगे। आर्ट की बात की मतलब जैसे ठीक है, सब जीआईएस पे होना चाहिए, रोड भी होना चाहिए, बिल्डिंग भी बननी चाहिए, हमारा गार्डन भी थोड़ा ठीक जगह पे होना चाहिए। बट आई गेस हम कॉन्टेक्चुअली यदि बिहार के संबंध में बात करें तो थोड़ा हमें, चूँकि आपने कहा है एक्शन की तरफ जो हमारे सेशन का है, तो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ वी सी द पॉसिबिलिटी एंड इफ देयर इज इंसेंटिव, तीन तो पहले इंक्लूजन का है, फिर मैं अपनी दिन के वक्तव्य पे कुछ बातचीत करूँगा। इंक्लूजन के लिए तो कॉन्क्रीट दिखेगा, वरना दिखेगा खाली बात करके चले गए। तो एक तो ये है कि चूँकि आपने चर्चा बहुत बार किया है और आई एम नॉट श्योर कि इट वाज प्री प्रिपेयर्ड और फिर आपने इसमें एडिट किया है, बट माई रिक्वेस्ट इज़ दैट DMI को भी शामिल कर लीजिए, अदरवाइज इट डजंट लुक अप्रोप्रिएट इवन इफ वी आर सिटिंग इन CIMP। सर बैठे हुए हैं, बट सिंस अमृता हैज़ बीन रेफर्ड मेनी टाइम्स, तो एक बार उनको भी शामिल कर लीजिए, बिकॉज आई मीन DMI इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एंड दे हैव, तो एक तो उसको शामिल कर लें तो अच्छा है। आई थिंक इस पूरे जो आपने एक्शन लिखा है उसमें शायद हम बचते रहे हैं या टेक्निकल एजेंसी बोल के ख़त्म किया है, बट प्राइवेट सेक्टर को प्रोमिनेंटली लिखिए, क्योंकि अभी और सर मैं आपकी बात पे फिर आऊँगा। प्राइवेट सेक्टर का भारी रोल है, सो मच सो वी इवन द न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप इन इंडिया और एनीवेयर एल्सवेयर, क्योंकि प्राइवेट इस पूरे जितने स्टेक होल्डर को हमने मैप किया है, प्राइवेट सेक्टर के पास ही एक तरह से इंसेंटिव है to even interpret 16th Finance Commission, develop appropriate project and then take it to ULBs. ULB on themselves can't do. I mean, हम लिख लेते हैं अपने कैपेसिटी बिल्डिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे किसका, यानी इसे क्रूड रियलिटी। आज कोई सरकार के लोग नहीं आए, वहाँ पे भी नहीं आए, उनके पास तो लोग ही नहीं। तो एक बार प्राइवेट सेक्टर को प्लीज़ रखिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वेल इंसेंटिवाइज इवन इन बिहार। इनफैक्ट आप मिनिस्ट्री को देख लीजिए, अर्बन, पंचायती राज, किसी मिनिस्ट्री को उठा लीजिए, सारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग बैठे हैं। दे आर इंटरप्रेटिंग द रूल्स, दे आर प्रिपेयरिंग द प्रपोजल्स, वही का प्रपोजल होता है, वहीं पे एवेल्युएट होता है। सो बोथ आर देयर। सो प्राइवेट सेक्टर सेकेंड इंक्लूजन है। तीसरा मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स वेरी रोमांटिक टू टेल, बट एटलीस्ट फॉर जिस ULBs की हम बात कर रहे हैं, इवन पटना के पास अपना ओन सोर्स रेवेन्यू का कोई साधन नहीं है, क्लियर QED मतलब है ही नहीं। इनफैक्ट सिवाय कुछ राज्यों को आप छोड़ दीजिए, उनके बड़े अर्बन लोकल बॉडीज़ को छोड़ दीजिए, वरना किसी के पास संसाधन नहीं है अपने, इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली डजंट हैव इट्स ओन अनलेस यदि सरकार उनको देना बंद करे। तो आई थिंक एटलीस्ट मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगा कि हमारे एक्शन में लिखें कि हम मतलब इवन कैपेसिटी बिल्ड ना करें उनका तो बेहतर है, बिकॉज दैट गिव्स ए फॉल्स होप, और इट हैज़ बीन डन फॉर इवन पंचायत कि आप हाट बाज़ार लगा लीजिए और आप पंचायत का ऑन सोर्स रेवेन्यू हो जाएगा। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक ऑन सोर्स रेवेन्यू पे थोड़ा कम हम बातचीत करें, बाकी सोर्सेज की बात करें कि कैसे वो अदर फाइनेंसिंग। तो ये तो तीन हमारे इंक्लूजन थे आपके एक्शन वाले में। सम ऑफ द रिफ्लेक्शंस पूरे दिन के लिए जो मेरी तरफ से है, देखिए बिहार में एक कहावत है और मे बी ट्रू फॉर अदर एरियाज एज वेल, नाइस अच्छी कहावत है कि देखिए बिहार के गाँवों का रोड हमेशा और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के शहरों के रोड से बढ़िया रहा है, क्लियर। और ये और कॉम्प्लिकेट होता है जब वो सर चले गए या आप तो हैं अभी संपर्क चेक में, तो जो छोटे वाले अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मतलब उनके पास चूँकि पैसे है नहीं, पंचायत छोटी इकाई होती है, थोड़ा इंसेंटिव ज़्यादा होता है, कम लोग हैं, 3-4 लोगों को ही अपने इंसेंटिव को भी शेयर करना है, तो वहाँ रोडें बन जाती है, नली गली भी बनती है, चैलेंज उनके भी है, मगर अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये भारी समस्या होती है। तो ये तो एक रिफ्लेक्शन है, तो थोड़ा उसको भी हमें देखने का है। थोड़ा जो NGO और मैं उसी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे साथियों को भी देखने का ज़रूरत है। देखिए इंदौर वॉज मच सेलिब्रेटेड, बट 4-5-6 हफ्ते पहले ही तो देखिए किसी एक चीज़ पे ज़्यादा यदि जोर जो जाए तो दूसरा छूट जाता है, तो अभी इतने बच्चों की डेथ हो गई। इवन यूनिसेफ ने भी बड़ा भारी मतलब कोई आपने माइक वाइक भी लगाया हुआ है, बट आई एम सेइंग दैट इट वाज केस स्टडी फॉर एवरीवन, तो हमारे लिए भी था, मगर हम बच्चों की संस्था थे और देयर वर सो मेनी डेथ्स अराउंड। सो आई थिंक दैट मेरे लिए रिफ्लेक्शन ये होगा कि लेट्स कीप वर्किंग, हम ऐसा शोकेस ना करें एंड जो हम यूजुअली करते हैं। सो एनी ब्यूरोक्रेट और एनी पॉलिटिशियन, सो 5 वर्ड को अच्छा है हम काम करते रहें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि करना नहीं चाहिए,
बट देखिए क्लियर है, मतलब डेवलपमेंट पैरेलल्स में बोलिए, अदरवाइज भी जो भी विकास की चीज़ें हो रही है उसमें आप देखेंगे तो क्लियरली गवर्नमेंट हैज़ टू लीड कम्युनिटी। एक व्यक्ति आपका या किसी का भी, मतलब मेरा एक स्टेट कोऑर्डिनेटर होता है, बोलता है कि वी आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट और वी आर हेल्पिंग द कम्युनिटी। आई थिंक दोनों ही खतरनाक है। सो चूँकि हम एक्शन प्लान और थोड़ा रियलिस्टिक हो तो अच्छा है, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी रहे ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि सरकार को ही लीड करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल आया कि भाई हम सेग्रीगेट कर रहे थे, बट तुरंत एक्शन हुआ दैट कि हम तो सेग्रीगेट करके ले जा रहे दिलसाद ने कहा, बट हमारे रखने के लिए नहीं था। दूसरी तरफ से आया कि भाई उसे नहीं पता था, बट आई एम श्योर कि वो तीनों ही सही नहीं। क्लियर है? तो किसी भी जगह देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट लीड करेगा तभी समुदाय उसके साथ आएगा। कभी ऐसा सोच लेंगे, वो एक आध दिन के लिए हो सकता है, अन्ना मूवमेंट कुड बी 4-5 डेज 6 डेज कि थोड़ा दिन लीड कर ले और सरकार भी चली जाए, मगर अदर वे राउंड इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक हमें उस पर जोर देना चाहिए। तो अभी आखिरी चीज़ ये है कि आपके पास जो भी डोनर मनी है या जहाँ से भी आपके सोर्स आए हैं, तो आई थिंक थोड़े ग्राउंड पे वहीं पे काम करें। आई मीन दैट शुड बी द वे फॉर प्राइवेट सेक्टर और फॉर अस एज ए सिविल सोसाइटी पार्टनर या एनजीओ या इंटरनेशनल एजेंसी के लिए। तो ये होगा। बाकी साइंस की बातें तो आई गेस पूरे दिन ही हुई है, तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं, उसमें तो ठीक है, क्योंकि घर बनेगा। मतलब आई थिंक ऑल द एक्टिविस्ट सिटिंग, आई मीन दैट्स द आखिरी सेंटेंस की यमुना बैंक पे प्रोटेस्ट भी किया हमने कि कॉमनवेल्थ नई विलेज बनने चाहिए। और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जब कॉमनवेल्थ विलेज वाले अपार्टमेंट्स बिक रहे थे, तो दे वर द फर्स्ट इन द लाइन टू बाई इट। सो आई थिंक भाई लोगों को रहना है, आई मीन गंगा प्लेन और नो गंगा प्लेन। आई नीड ए हाउस टू लिव इन पटना, मेरा घर पटना नहीं है, तो मुझे तो रहना है। अब जिम्मेदारी बिल्डर्स की जो प्राइवेट सेक्टर है और सरकार की है कि वो कैसे नेगोशिएट करके कहाँ पे आप घर बना रहे हैं। हमारी मजबूरी है। आई मीन आई कांट एज ए बायर नॉट रिसर्च कि भाई यहाँ पे 100 साल पहले यमुना जी बहती थी। ये तो, और देखिए एक जो आखिरी वाला बात है जिस पे बात सर ने कहा कि उनके पास जगह नहीं है कि इतना, देखिए हर ज़माने में, आज क्लाइमेट चेंज आपने नाम दिया है, बट हर ज़माने में कॉमन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ जगह पे बनाया जाता था। तो आज से 50 साल पहले जितने भी विद्यालय बने हुए हैं, दो विद्यालय आज भी अप्रोचेबल है। सो आई थिंक उस टाइम के क्लाइमेट को देख के उन्होंने ठीक ठाक ही बनाया था। सो आई थिंक वो देखने का ज़रूरत है, लेकिन बनना है। अभी यूएलबी यदि आपने डिक्लेयर करा है तो उसके ऑफिस को बनना नहीं बनाने। Rajiv, I just want So that's to add sir. that it is not that always made in the safe place. It is also there are cases that place is made safe. मतलब इधर वे सर, मतलब वही करे तो वो सर आज सुबह उन्होंने कहा तो चले गए अभी। Finding a safe place you may not find. Yeah, that's right. Make that place safe. सर वही वो कह रहे थे कि नक्शा हमारा एक है और हमें उसको लैंड फिलिंग के लिए प्रोजेक्ट में पैसा नहीं है। तो बोला हम यदि ऑफिस बनाएंगे तो अगले दिन वो दह जाएगा ऑफिस। तो एनीवे, सो आई मीन दिस वर माय रिफ्लेक्शन, बट 3 कॉन्क्रीट पॉइंट टू बी एडेड कि वो इंसेंटिवाइज रहेगा तो थोड़ा बढ़ेगा आगे। थैंक यू। Sir, before we finally move on to Rafi sir, just a quick question. This was I was supposed to ask this, that with what you have said, how can we enhance the capacities of the government officials and the ULBs like sir is here with us, Amit sir, to avail the climate finance? मतलब क्लाइमेट फाइनेंस ठीक है, चूँकि हमारा विषय है तो हम ये कह रहे हैं हमें फाइनेंस में ही रेस्ट्रिक्ट कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसका एक क्लियर मैंने बताया, इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपने KPMG को इन्वेस्ट ENY को किया, मतलब जितने भी बिग 4 या जो उसके आगे पीछे भी कुछ लोग हैं, तो उन्होंने जैसे आपने इंसेंटिवाइज किया, दे विल ब्रिंग द प्रोजेक्ट। सिंपल। आई मीन गवर्नमेंट से आप सारे इमेजिनेशन नहीं ले सकते। आई मीन द सेम ब्यूरोक्रेट कैन हैव ए पॉलिसी ओवरसाइट एंड सेम ब्यूरोक्रेट कैन थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड सेम को आपने मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन भी दिया है। तो यदि आपने प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर दिया तो ऑल दोज फाइनेंसेस कैन बी एडिक्वेटली एक्सेस। आप देखिए 15th फाइनेंस खत्म हो रहा है अगले 1.5 महीने में, 16th की टेबल रिपोर्ट हो गई, सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बट आप अपने स्टेट में यदि देखेंगे, जस्ट बिकॉज आपने प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छे से नहीं किया, उसको थोड़ा मॉनिटर कर लें, तो आई थिंक लॉट ऑफ फाइनेंस करेंटली अवेलेबल कैन बी लेवरेज फॉर द पर्पस दैट वी आर टॉकिंग। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करिए। गवर्नमेंट में आप देखिए कैसे रिक्रूट करिएगा, नहीं हो सकता। आई एम सेइंग दैट लेट्स सिट टुगेदर फॉर से अबाउट नेक्स्ट 10, 15, 20 डेज, नहीं होगा। मतलब हमारे छोटे से पैसे हैं, वो भी तो सरकार कहती है कि नहीं, यदि हम रिक्रूट कर ही लेते तो आपका पैसा तो हमारा 1/1000s में है,
मगर वो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, इंटेंशन भी है हमारा लेकिन नहीं कर सकते। सो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज यदि किया जाए, लाइक बुराई हो सकती है मगर देन दैट कैन वर्क, अदरवाइज नॉट रियली। थैंक यू। Thank you. Rajiv ji, thank you. And Prabhu ji, thank you. When you said I'm not the government, I was smiling. I mean, it's a fact. Because in our student life, there was a joke going on. We live in a parliamentary democracy. Who heads the government? So most of the students say it is the politicians who head the government. The ministers are the politicians. फिर लोगों ने कहा कि नहीं, मिनिस्टर अपने से तो बहुत काम नहीं करते, उनको तो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो चलाते हैं पूरा, ब्यूरोक्रेसी इज रनिंग द गवर्नमेंट। So आईएएस, आईपीएस एंड ऑल दोस सीनियर ऑफिशियल्स आर रनिंग द गवर्नमेंट एंड दे आर। फिर उस पर भी टीचर खुश नहीं हुए, फिर बोला कि नहीं शायद कुछ तो छूट रहा है, तो बोला कि नहीं, आईएएस जो होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी जो एडवाइस करते हैं, एडवाइजर्स जो होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अभी नाम ले रहे थे अभी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड अदर्स, एडवाइजर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली में दे रन द शो विद इन द गवर्नमेंट। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ? मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि हमने जो टॉपिक लिया है, जिसमें हर एक वर्ड को अगर हम लोग डिस्कशन करने बैठें तो पूरा दिन कम है। इंक्लूसिवनेस की बात सिर्फ करें तो पूरा दिन कम है, क्लाइमेट सेंसिटिविटी की बात करें तो पूरा दिन कम है, वॉश तो अपने आप में कई दिन लग जाएंगे, और अर्बन इमर्जिंग इश्यूज भी हैं, और मेरे ख्याल से अर्बन की अपनी अलग समस्या है और वो आज निकल के भी आई है। इन सब बातों में हमको समाज और सरकार का समन्वय ज़रूर देखना चाहिए। अमिता जी, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समेटा है। मैं चूँकि मेरी ट्रेनिंग जो है पब्लिक हेल्थ है और मैंने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया है, तो हम लोग बोलते हैं हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का डायरेक्ट संबंध स्टेट से है, सरकार से है। तो जब राजीव बोल रहे थे ना कि सरकार को ही लीड करना पड़ेगा इन सारे मामलों में, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार को ही लीड करना पड़ेगा। लेकिन सरकार कौन लीड करता है, जो बात मैंने पहले बताई। और हम बैठे हैं CIMP में, और आनंद जी वाटर एड को लीड कर रहे हैं, उनका अपना सिस्टम के साथ अनुभव, और संजय जी यहाँ लीड कर रहे हैं, उनका एक समय था, मैं बोलना नहीं चाहता हर जगह पे, लेकिन बोलना पड़ता है। PhD और संजय जी का मतलब सिनोनिमस थे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, कि हम जो भी यहाँ बैठे हैं सब बहुत अनुभवी लोग हैं, सब जानते हैं कि सरकार कैसे काम करते है, समाज में ये सारे काम कैसे होते। डिसेंट्रलाइजेशन की बात जैसे ही करेंगे ना, तो ULB की बात बहुत बार आई, 73rd 74th अमेंडमेंट की। हमें वहाँ भी सोचना पड़ेगा, देयर इज़ अ पावर डायनामिक्स विच इज़ एट प्ले विद इन द होल सिस्टम, एंड दैट इज़ नॉट लेटिंग द पावर गो बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट्स, and that is where ULBs are facing it day in and day out. Not just ULB, the rural PRIs also. We need to work there also. तो एक है सिस्टम्स के साथ काम करने का पूरा मामला, वॉश के सिस्टम की बात हो, अर्बन सिस्टम की बात हो, और दूसरा मैनेजमेंट। चूँकि हम CIMP में हैं, तो मैनेजमेंट में प्लानिंग से लेकर के फिर मॉनिटरिंग तक अगर हम पहुंचेंगे, तो उसकी पूरी व्यवस्था, मतलब सरकार के सिस्टम को चलाने की व्यवस्था में मैनेजमेंट के साइकिल का इतना बड़ा हाथ है कि हम कभी तो सोचते हैं कि प्लानिंग में कहीं फेल हो गए, हम कहीं ज़्यादातर जगहों पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स का निदान क्या है, हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशंस टू दो। क्योंकि यहाँ रेजिलियंस की भी बात हो रही है, रेजिलियंस पे पूरा एक रोड मैप बना हुआ है। संजय जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग DRR रोड मैप की बात करते हैं, वहाँ पे एक रेजिलियंट सिटी करके एक पूरा चैप्टर है,
और रेजिलिएंट सिटीज़ में जो इंडिकेटर्स हैं वो कम्युनिटी लेवल के इंडिकेटर्स हैं, और उसमें 27 डिपार्टमेंट्स को क्या क्या करना चाहिए उसका एक्शन प्लान बना हुआ है. That got revised also last year only that got revised. But is it being referred? It is. If it is being referred, where are we referring it during planning processes, during implementation process? Why I am saying system को अगर काम करना है तो government has to lead, but government also has to engage all other stakeholders, be it scientific community which is there within the system or outside the system, institutions like academic institutions and management institutions. हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और चूँकि हम लोगों ने सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो जब भी NGOs की बात होती है, CSOs की बात होती है, सीधा उसको समुदाय से हम जोड़ते हैं. अच्छी बात है, जोड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पार्टनर्स, जो मैंने वो जोक सुनाया, उसमें भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं जो पॉलिसी लेवल पे भी इंगेज करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. उनका योगदान इस वजह से भी ज़रूरी है कि वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर से आते हैं. देयर आर एडवाइजर्स फ्रॉम प्रॉफिट सेक्टर, दे विल एडवाइज इन अ सर्टेन मैनर. There are advisors from the non-profit sectors who would advise in a certain manner. I'm not getting into the details, but that's important that that role is being played by those people. Community engagement and ownership, that has to be built from the planning stage. Without that, जो बात बोल रहे थे आप कि अगर हमने घर में सेग्रीगेशन शुरू कर दिया और उसको जब बाहर देने जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमारे एफर्ट्स आर गोइंग टू वेस्ट, तो जितने भी व्यवहार परिवर्तन हम कर लें, दे आर ऑल्सो गोइंग इन टू वेस्ट. एंड एक्चुअली दैट इज गोइंग डाउन एट ए लेवल जहाँ उसको पहले वाले लेवल तक भी लाना मुश्किल होगा. तो दैट बिहेवियर चेंज एंड द सिस्टम चेंज हैज़ टू हैपन साइड बाई साइड टुगेदर. इट हैज़ टू सिंक्रोनाइज समवेयर. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब यहीं पे बात ख़त्म करूँगा. आप लोगों ने बहुत अच्छा कंसल्टेशन आज रखा और उस पर चर्चा हुई. मेरे ख्याल से अब अर्बन यूनिट्स पे गवर्नमेंट का भी ध्यान बहुत ज़्यादा है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट अभी आया, उसमें भी छोटे अर्बन यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान है. हमें सबको मिल के यहाँ पर जितने बैठे हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हों, उन सारे फोर्सेस को, सारे पॉलिटिकल विल की बात हुई, उस पॉलिटिकल विल को एक अच्छी दिशा देनी चाहिए ताकि हमें रिजल्ट भले ही 1 साल 2 साल के बाद मिले. दिशा अगर सही होगी तो दशा भी ज़रूर सुधर जाएगी. हमें उस तरफ अगर कंट्रीब्यूट करना है तो वी हैव टू कीप दिस प्रोसेस ऑन एंड वी हैव टू कोऑर्डिनेट. एंड जो बात हो रही थी, जो आपने बोला कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, कन्वर्ज एक्शंस होना चाहिए, वो कन्वर्जेंस का तो एक इशू बहुत दिनों से चल रहा है, वो कहीं सॉल्व नहीं होता, लेकिन शायद थोड़ा थोड़ा हम उसमें सक्सेस ढूंढ लें. हम कुछ पायलट्स बिल्ड करें जो शायद रेप्लिकेट हो सकें, स्केल अप हो सकें. तो मेरे ख्याल से अभी जो माहौल बना है उसमें ये आज का पूरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है. उसको यूं ही ज़ाया नहीं करना है, हमें इस प्रोसेस को आगे लेके जाना है. बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए. Now finally, vote of thanks. I would like to thank Professor Dr. Rana Singh, Director CIST, and our Chief Executive Anand Shekhar sir to grace the inaugural session and highlighted the position for this round table पे समझ बनाने का काम किया. मैं in absence of urban development department, unfortunately जो डे हम लोगों ने फाइनल किया, इनिशियली इट वाज ऑन 4, उनका कमिटमेंट था. आज असेंबली में उनके सदस्य से डिजाइन का काम और मिनिस्टर ने कहा कि असेंबली उनके
थैंक सुनील सर, जिनके पूरे लीडरशिप में हम लोग इस इवेंट को कर पाए हैं, एक समझ बना पाए हैं। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू थैंक दीपेंद्र कपूर, डायरेक्टर NIUA C3। उन्होंने भी काफ़ी समय दिया। अर्लियर हम लोग चाह रहे थे वो यहाँ आए, बट ही जनरली ऑफर कि क्या CIMP, वाटर एड और NIUA और ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर सिटीज़ और क्लाइमेट एक्शन पे काम कर सकते हैं। NIUA इज़ रेडी टू वर्क विथ अस। स्पेशल थैंक्स टू जीवन। काफ़ी इनका टाइट शेड्यूल था, उसके बावजूद बिल्कुल हैक्टिक अपना शेड्यूल बनाते हुए आए हैं। थैंक यू। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अकबर नगर की पूरी टीम को। उनकी ट्रेन थी, अभी तुरंत जाना पड़ा। उनके चेयरपर्सन से लेकर वार्ड मेंबर तक सारे लोग पूरे दिन उपस्थित रहे, वो लोग आए। आदि के अर्पण शर्मा जी, DMI से अमिता, टेक्निकल टीम के लीड पूर्णा मोहंती, CN प्रभु सर, IMD से आशीष कुमार जी, दिलशाद फ्रॉम GIZ, नित्यानंद मौर्य जी फ्रॉम NIT, सेवा भारत टीम, यूनिसेफ से सुधाकर जी एंड राजीव, संजय सर काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट रहे। PCI से टीम को शशि भूषण जी, रमाशंकर जी, आप सबका धन्यवाद। राफे जी, तो फाइनली थैंक यू। अमिता हमारी टेक्निकल टीम से लीड किया, पूरे दिन को एक अच्छे से 4-5 स्लाइड में कंसोलिडेट कर प्रेजेंट किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नॉरिश पूरे को एंकर करने के लिए काफ़ी मदद की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुनील सर, कुड बी हमारा जो लंच ब्रेक के बाद जो सेशन है, चौथा सेशन है, वो है सिंथेसिस, व्हाट कैन चेंज इन द नेक्स्ट 2 years, consolidating insights into shared priorities and near-term pathways। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में गई थी और मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम है जो कि लोहिया स्वच्छ भारत से रिलेटेड चल रहा है, बहुत सारी फाइलें हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल मैं शुरू करना चाहूँगी अमित कुमार सर के साथ, जो कि चेयरपर्सन है संपतचक अर्बन लोकल बॉडी के, कि सर अभी जो स्वच्छ भारत मिशन है और जो लोहिया स्वच्छ अभियान है, वो किन चीज़ों को एड्रेस कर पा रहा है स्मॉल टाउन्स में और किन चीज़ों को एड्रेस नहीं भी कर पा रहा है। क्योंकि इस सेशन में ज़्यादातर हमारे मेंबर्स जो हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं और CSOs से हैं, और जनरली हम सरकार के मिशंस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे कि हम लोग स्कीम्स के साथ अलाइन हो पा रहे हैं स्मॉल टाउन्स में, या आपको लगता है कि ये बहुत आइडियल है ये सारे स्कीम्स, और प्रैक्टिकली स्मॉल टाउन में इनको एग्जीक्यूट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो आपके हिसाब से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेशनल लेवल के स्कीम्स और स्टेट लेवल के स्कीम्स के रिगार्ड्स में क्या हो सकता है? देखिए, इसमें तो कोऑर्डिनेशन का कमी है। जैसे लोकल लेवल पे जो होता है, मतलब हमारा जो नगर पालिका है, वहाँ के जो कर्मचारी और लोहिया स्वच्छता मिशन और जो भी मतलब ये पेपर की जो है काफ़ी अच्छा दिखता है, मगर वहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या स्थानीय समाज सेवक हैं, उन लोगों से मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं, उसको सही से मतलब उतारा नहीं जा रहा है, मतलब धरातल पे। तो इसमें हम यही कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, थोड़ा मतलब जो इसके पदाधिकारी है या जो भी है, वो ज़मीन स्तर पे आके हम लोग से सही से समन्वय बैठा के अगर करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा ज़रूरत है। अभी कौन कौन सा स्कीम चल रहा है? सही बताएं, वो तो चल रहा है। जैसे हमारा जैसे जो मेरा म्यूनसिपल काउंसिल है, बेसिकली हम लोग का काम क्या होता है, नगर को साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना। तो सैनिटाइजेशन चलता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग अपने स्तर से जो नगर पालिका का जो भी
बजट है, फंड है, उसके अनुसार हम लोग सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, चूना ब्लीचिंग, प्रतिदिन कचरा उठाओ, ये सारा काम प्रॉपर हम लोग करते हैं। मगर जो सहयोग चाहिए ऊपर से, थोड़ा ह्यूज बजट का भी मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। जैसे अभी सरकार का एक पॉलिसी है, बिहार सरकार का, कि हम लोग अपना बजट बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हमारा जो बजट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, मगर सरकार इसमें क्या लाया है, अभी तो इनके सरकार के द्वारा बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था दीजिए, सुविधा दीजिए, ताकि नगर आपका साफ रहे, एरिया साफ रहे। मगर इसमें क्या है कि उसमें एक क्लाउज लग गया है, जिस बजट पे आप अभी काम कर रहे हैं उसका आप 30% ही इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग 1 लाख रुपया में काम कर रहे हैं तो 1,30,000 रुपये। और जो मेरे साथ, मेरे नगर पालिका में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हमारा क्या था कि हम लोगों को कम से कम 4 गुना ज़्यादा बजट करना था, बढ़ाना था, और इसके लिए परमिशन लेना होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार, माननीय मंत्री और सचिव जी से प्रयास कर रहे हैं कि हमको विशेष परमिशन दिया जाए, मगर उसमें दिक्कत है। सफाई प्रॉपर जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम बोले थे कि कोऑर्डिनेशन का और सहयोग का ज़रूरत है। यही बात है। सर, मेरा अगला सवाल सुधाकर सर से है कि सर, जैसा सर बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है और समझ में भी कमी है कि क्या डिमांड है स्कीम का उनसे और उनके बॉडी से, लोकल बॉडी से लोकल बॉडी बिल्कुल ज़रूरी है समन्वय बिठाना, जो जनप्रतिनिधि है खास करके, क्योंकि स्थानीय समस्या तो हम ही लोग जानते हैं, या फिर जो हमारे पार्षद है, मुखिया है ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में जो पार्षद हैं उन्हीं लोग को पता है, मगर उनको अनदेखा किया जाता है। इसमें कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है, संशय नहीं है, तो बस जी। तो सुधाकर सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा लगता है कि जो यूएलबी के मेंबर्स हैं उनको उनके इंडिकेटर्स मालूम हैं, उनको पता है कि उनको कहाँ डिलीवर करना है और क्या इंडिकेटर्स हैं, या अगर नहीं है तो हम किस तरह से जो ये नेशनल लेवल या पैन इंडिया या पैन बिहार को एक ब्लैंकेट करने वाले स्कीम्स को देखते हैं, उसको और कैसे ट्वीक कर सकते हैं, और उसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और हर आदमी की अपनी क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं?